अस्सलामुअलैकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और हमारे 2 गेट क्रैशर्स। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन्ने पसंद आ गए ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਗੈਸਟ? जिसने आज बैठना था जिंदगी के सफर में। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਲੀਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਸਫਰ ਸੀ? नहीं, हमने खाली ज़िंदगी का सफ़र नहीं पूछना होता, हम अचीवर्स से पूछते हैं जो लोगों को किसी तरह मुतासर करें और फिर वो भी वैसे बनना चाहें या उनके स्टेप्स को फॉलो करना ਹਾਂ ਤੇ चाहें। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਚੀਫ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੌਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਕੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਫ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਚੀਫ ਨਹੀਂ, ਅਚੀਵ। ਅਚੀਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸੁੱਟ ਲਵਾਂ, 2 ਨਵੇਂ ਲਵਾਏ ਆ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਏ? ਇਹਦੇ ਕੋ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਲੈ ਬਾਂਦਰੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਂਦਰੀ। ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਬਾਂਦਰੀ ਲੈ ਦੱਸ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਟਪੂਸੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਪੂਸੀ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਟਪੂਸੀ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸੀधी होती ਟਪੂਸੀ ਉਲਟੀ ਲੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀ। ਸਬਰ ਸਾਲਟ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਸਮਰ ਸੌਲਟ ਬਾਂਦਰ ਦੇ 14 ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਮਰ ਸੌਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਟਪੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੰਦੀਆਂ ਦੁੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਨ ਚੜਾਈ ਵੀ ਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਫੜਨ ਕੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਪੜ ਜੇ ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹ 5000 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ मैं इसलिए आप लोगों से फिर सवाल नहीं कर रही कि वो बात पता नहीं किस तरफ चली जाती है। मैं अपने सेगमेंट मेल बॉक्स की तरफ जाना ਅਭੀ चाहूँगी। कहते तो मेल बॉक्स साडी जिंदगी ਦਾ ਸਫਰ ਤੇ ਵੀ ਚੀਫਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਚੀਵ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। चीफ गेस्ट नहीं भाई, अचीवर होते हैं। ਅਚੀਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ। नहीं नहीं, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲ ਕੇ ਕੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਖਲੀਕ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਥਲੀ ਅਸਲੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीफ गेस्ट होता है, एक चीप गेस्ट भी होता है। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਵੀ 2023 ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ? 24 ਜਾ रहे हैं बाजी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਓਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣੀ ਪੜ ਲਾ। अब मैं मेल बॉक्स शुरू कर लूँ प्लीज़? ਹਾਂ ਮੇਲ ਬੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। मेल बॉक्स मेल बुश। जी सर, हम चलते हैं अपने मेल बॉक्स सेगमेंट की तरफ। सो पहला सवाल है कि चौधरी की वजह तस्मिया बयान करें आप। चौधरी आमतौर पे इस्तेमाल होता है जो बड़ा हर चीज़ का इंचार्ज हो। और ये चौधरी एक जैसे कमरा है ना जिसके चारों तरफ दरवाजे हैं, यानी वो हर तरफ खुलता है। चौधरी है ना इस जगह का, तो उसका हर एक के साथ ताल्लुक़ है, हर एक के साथ राब्ता है और वो हर चीज़ का इंचार्ज है। फिर इसको दीवार के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है कि हर चार दीवारी जैसे कर देते ना किसी एक चीज़ के गिर्द, तो ये चौधरी है, हर तरफ इसका बोलबाला है। वो तो एक सर्टेन पोजीशन होती होगी, लेकिन एक तो कास्ट भी है, तो उन्हीं से नहीं वो उसी से है ना कि जो गांव में एक जो नंबर 1 होता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर यही कास्ट बन जाती है। और कास्ट भी स्ट्रिक्टली ये नहीं है। हाँ। मुख्तलिफ कास्ट भी चौधरी इस्तेमाल करती तो है। तुसी भी तो चौधरी साहब मतलब एक राजपूत हैं, एक दोस्त हमारे अजीम चौधरी, वो राजपूत होने के बावजूद चौधरी नाम के साथ लिखते हैं। अराई भी लिखते हैं, गुज्जर भी लिखते हैं, जाट लिखते लिखते हैं, हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ। यस। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਦਰਾਹਟ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਸੀ ਐਵੇਂ ਡਰ ਜਾਣ ਤਾਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਨੁਕਰੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰ ਨੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। सर, आपने बात करनी थी वो जो अंग्रेजी में पोइट्री की किताब आई है उसके बारे में। वो हसन रज़ा साहब हैं हमारे व्यूअर अमेरिका से, तो उन्होंने किताब तो नहीं भेजी, उसका लिंक भेजा है। तो अंग्रेज़ी ज़बान की किताब है, अंग्रेज़ी पोइट्री। बाज़ लोगों को बहुत शौक़ होता है अंग्रेज़ी पोइट्री पढ़ने का, तो शकील साहब ज़रा उसके बारे में बता दीजिए। जी,
वो PhD डॉक्टर हैं। उनकी किताब का टाइटल है टू सोल्स वन रिफ्लेक्शन। तो ये किताब है जी, अगर आप ज़ौक़ रखते हो अंग्रेज़ी शायरी पढ़ने का तो दिस इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। और इसकी प्राइस है $8। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੰਚ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। क्यों? ਪੰਚ ਤੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? मुशायरे भी इसके और तरह के मुशायरे होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। लेकिन अंग्रेज़ी शायरी बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत बड़े बड़े शायर अंग्रेज़ी। शेक्सपियर भी शायर ही है गासी। अच्छा जी सर, नेक्स्ट कमेंट है जो कि ये तो हमारे प्रोग्राम के नीचे आए हैं, मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं। मैसेज है कि सर आपको ज़फ़र इकबाल साहब का वास्ता, कसौटी को यूट्यूब पर ही रखें। नहीं, वो मेरी मजबूरी है कि इतने सारे प्रोग्राम्स जो है ना वो हम इस तरह वो कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, वो कंफ्यूज होते हैं हमारे व्यूअर्स जो है ना। ये अब कोई टीवी तो है नहीं ना जहाँ फिक्स पॉइंट चार्ट होता है कि इतने बजे ये लगना है, इतने बजे ये लगना है। हमने तो प्लेलिस्ट देनी होती है, तो इतनी तवील प्लेलिस्ट जो है वो नहीं दी जा सकती। और दूसरा ये कि हमारे पेट्रन्स जो हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो देना है, समथिंग स्पेशल, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो एक्सक्लूसिव है। तो कसौटी इज़ आवर गिफ्ट टू आवर पेट्रन्स। सर अगले कमेंट में जो डॉक्टर ऑफ क्रिएटिविटी हैं वो कहते हैं कि सर आफ्ताब, if you're removing कसौटी from YouTube then we will stop watching full ads on your channel। चलें, ये भी एक अच्छा इंतकाम है। क्योंकि अगले कमेंट्स भी सिर्फ यही हैं, कोई तो तरीका हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि हम एक कसौटी हम जर्नल कर दें और बाकी हम पेट्रन्स के लिए एक कसौटी कर सकते हैं। इस पे तो गौर किया जा सकता है, राइट है ना। ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾ। सैयद नाजिम कहते हैं कि आपके कहने पर अमल करते हुए अब प्रोग्राम के साथ साथ इश्तिहारात वगैरह भी देखते हैं, लेकिन आफ्ताब साहब इस प्रोग्राम के साथ न जाने किस ज़ुबान में नहायत फुहश और बेहुदा गाना तकरीबन 2 मिनट तक चलता रहा। इस गाने को सुनना एक अजाब से कम नहीं। नहीं, वो ना देखा करें, वो ना देखा करें। ਕਿਹੜਾ कौन सा ਜਿਹੜਾ गाना? कोई होगा ना, कोई YouTube ਤੇ ਲਾ गाने भी तो होते हैं ना जो स्पॉन्सर करते हैं, तो होगा कोई अंग्रेजी गाना आप ना देखें। शकील साहब ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ। मोहम्मद अनीस साहब कहते हैं कि फॉर द लव ऑफ अ फ्यू डॉलर्स आफ्ताब साहब डू नॉट close the doors of knowledge and information on the vast majority of your viewers by restricting the Kasauti show to your paying audience. Dollars have nothing to do with it, sir. This is not for dollars. This is for courtesy. लेकिन खुशी की बात यह है कि इतने ज़्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं इतनी इंटरेस्ट ले रहे हैं कसौटी में। जी हाँ, तो फिर उसके लिए ये किया करें ना कि कम से कम 2.5-3 लाख बंदे तो देखें उसको। हम इतनी मेहनत करते हैं और मर के 60-70 हज़ार, बल्कि इससे भी कम। तो इसलिए सीधी सी बात है भाई, अरिथमेटिक्स है। पीर जालिब साहब जानना चाहते हैं कि आपका कनेडियन एड्रेस क्या है? कैनेडियन एड्रेस मेरा आप यूं समझ लीजिए कि डिक्सी एंड डैंडस, ये बड़ा आसान है। ओपन माइक कैफ़े एंड कुजीन एंड थ्रू नासिर शाह, थ्रू नासिर शाह ऑफ कोर्स। लेकिन ये अगर ख़ुद जाना चाहते हैं वहाँ पे तो ये इट इज़ वेरी इजी। और अगर मज़ीद थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं तो आलमोस्ट फेसिंग टिम हॉर्टन्स। सो उस सड़क पे तो हर ब्लॉक में हर सिग्नल पे टिम हॉर्टन्स है। नहीं नहीं, ये जो हमारे वाला है ना, ये सड़क के पार बिल्कुल थोड़ा सा डायगनल है। हाँ, ਡੰਡਾਸ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਭਾਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ। ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਵੇਲੀ ਦੀ ਵੇਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਿਲਾਣੀ ਰੋਟੀ, ਜਾਂਦੇ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੀ। अच्छा आप वहाँ पे भी गेट क्रैशर बनना चाहती हैं? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। शुक्रिया सर। आज मैंने आपकी बायोग्राफी सर्च की, आप 1961 में पैदा हुए। मुझे खुशी है कि आप मुझसे 6 साल बड़े हैं, मगर देखने में आप मुझसे 20 साल छोटे लगते हैं। इसकी क्या वजह है? इट्स ग्रेट कॉम्प्लीमेंट भाई। आप भी ख्याल रखें थोड़ा सा, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान करने से ये होता है कि आप
चीज़ों को इजी ना लिया करें, एक्सरसाइज किया करें बाकायदगी के साथ, और खाने पीने में एहतियात किया करें, बहुत ज़्यादा टेंशन्स ना लिया करें, छोटी मोटी ले लें। अच्छा जी, सच कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पकड़ता है। जिसको मरूद का नहीं पता था आज पुन्नू को जुगते कर रही हैं। हाँ तो मैंने पिछले च कीतियां ना जुगतां कि तेरी बचपन ते भी फिटम ते तेरी जवानी भी मैंने ऐसे नहीं कहा। कुड्डी माड़ी गल मैंने भी कंप्लीमेंट कीते लोकां ने कि की हो गया कॉम्प्लीमेंट नहीं, कंप्लेन किया। ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਖੋਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾ। ਵਾਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਕੇ। वाडियाँ ਹਾਂ ਵਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਢੀ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आलू दी वाढी किधर? ਪਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਡੀਆਂ ਲੇਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੋੜੇ ਭੜੋ ਆਲੂਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਡੜਾ ਆਲੂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਚਾਲੂ ਪਏ, ਤੋੜਾ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। कतोड़े च ਮੈਂ ਕਤੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਤੋੜੇ ਚ ਕਿਹਾ है। अच्छा जी, जिंदगी का सफर में अगला मेहमान शकील साहब को होना चाहिए, हो गए हैं। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कहूंगी वैसे वाकई बहुत ही ब्लैंड कलरलेस किस्म का मेहमान था। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ। ਏਡੀ ਬੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚ ਘਰ ਸੀ, ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਹਾਂ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1992 में पाकिस्तान 4 खेलों में चैंपियन था। क्रिकेट, स्नूकर, स्क्वाश, हॉकी। मेरा ताल्लुक साउथ इंडिया से है। मैं पिछले 2 साल से आफ्ताब साहब का शो देख रहा हूँ। मेरी पंजाबी कमज़ोर है इसलिए कुछ बातें यानी मजाक समझ नहीं आते, मगर मैंने बहुत कुछ आपके प्रोग्राम से सीखा है। यू आर यूनिकली टैलेंटेड सोल। योर साउथ इंडियन ऑब्जर्वर इन न्यूयॉर्क। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू वेरी मच। जीते रहिए। ही इज राइटिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। फ्रॉम न्यूयॉर्क। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਟਾਤੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट भूले बिसरे गाने की तरफ। सर आज का गाना कौन सा है? आज का गाना मैं बताने से पहले ये गुजारिश करूँगा कि फ़िल्म आग का दरिया, इसकी खुसूसियत ये थी कि ये वाहिद फ़िल्म थी जिसके सारे गाने नामवर शायर जोश मलियाबादी ने, और ये बहुत बड़ा एजाज़ था इस फिल्म के लिए कि जोश साहब ने गाने लिखे। और इस फिल्म को अगर थोड़ा सा गौर किया जाए ना इसके ऊपर, तो लगता है कि एस्थेटिकली ये लोग बड़े सेंसिबल थे, बहुत लाजवाब लोग थे। इन्होंने गाने लिखवाए जोश साहब से, इसकी सिनेमाटोग्राफी की रज़ा मीर साहब ने, कंपोजिशन इसकी 2 बिल्कुल डिफरेंट लोग थे, गुलाम नबी एंड अब्दुल लतीफ़, आपने सुने भी नहीं होंगे। नाम नहीं सुने कभी। और बला के कंपोजर्स थे। ये बदकिस्मती हमारी कि इन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला, वरना मैं आपको जो बताने लगा हूँ जो वो गाना नहीं है इस फिल्म का जो ज़्यादा मशहूर हुआ, वह तराना था इस फिल्म का, ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में। तो ये मसूद राना और बड़ा शानदार कोरस है, इसकी कंपोजिशन इनकी है। आज का गाना हवा से मोती बरस रहे हैं, ये अपने दौर का सुपर डुपर हिट गाना था। और इस फिल्म में मोहम्मद अली शमीम आरा के गिर्द घूमती है, वो डाकू होता है, ये एक डांसर होती है, दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है और वो इसे मना करती है, ये उसे मना करता है कि दोनों काम बुरे हैं। फिर अल्टीमेटली ये अपने आप को संभाला देने के चक्कर में शरीफ हो जाता है, लेकिन हालात पीछा करते रहते हैं, वाक़यात पीछा करते हैं। कहते हैं कि एक इंडियन फिल्म थी मुझे जीने दो, ये उसका चरबा है। राइटर हैं इसके आगा नज़ीर काविश। तो फिल्म के? हाँ फिल्म के, तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना इनके बारे में। तो बड़े यूनिक लोगों के साथ उन्होंने फिल्म बना, लेकिन मकालमे बहुत खूबसूरत थे। और मकालमे किसके थे? रियाज शाहिद के। वाह। तो कुरातुल-ऐन हैदर का जो नावल है आग का दरिया, उससे कोई ताल्लुक नहीं कोई इसका? ताल्लुक नहीं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। आग का दरिया एनी आपा की जो स्टोरी है वो तो एक लाजवाल तो कहानी है। 2000 साल उसने कवर किए। जी जी जी, वो 2000 साल भी है, मॉडर्न टाइम्स भी है, उसके 2 पोर्शंस है ना, तो वो तो एक और कहानी है। ये एक डाकू की और एक डांसर की लाइफ में बहरहाल ये अल्टीमेटली मारा जाता है और दर्दनाक कहानी है। एक बेटा होता है इनका बच्चा। जो अहम बात है इस हवाले से वो ये कि इंतहाई मधुर म्यूज़िक, बहुत ही हसीन सिनेमाटोग्राफी, लाजवाब डायरेक्शन
मतलब हुमायूं मिर्ज़ा आपने को बहुत नहीं सुना होगा, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी था, सेंसिबल आदमी था, एस्थेटिक्स कमाल के थे उसमें, परफेक्शनिस्ट था। और एक और कमाल इसका कि मकालमे रियाज शाहिद के, तो सन 66 में ये फिल्म बनी और जो निगार अवार्ड था उस दौर का, बड़ा पॉपुलर निगार, अब भी मेरा ख्याल है मिलता, अब तो खैर फिल्में ही नहीं बनती, तो निगार अवार्ड्स 4 बहुत मेजर अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए मलका तरन्नुम नूरजहां को होए इस गाने पे, हवा से मोती, कमाल का गाना है, लाजवाब गाना है। फिर डायरेक्टर को, फिर शायर को, जोश मलियाबादी को बेस्ट लिरिक्स के ऊपर मिला, मोहम्मद अली को बेस्ट एक्टर के रोल में। इस फिल्म का कमाल ये था कि मोहम्मद अली प्रॉपर हीरो के तौर पे जो शर्फ कबूलियत अवाम की तरफ से मिलता है वो इस फिल्म में उन्हें मिला। ओके। फिर एक निगार अवार्ड सिनेमाटोग्राफी का भी रज़ा मीर साहब को मिला। मुझे अफसोस इस बात का है कि इसमें मौसीकार को इग्नोर किया गया। ये दोनों म्यूज़िक कंपोजर्स गुलाम नबी और अब्दुल लतीफ़, इन्हें निगार अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि हवा से मोती तो खैर है ही, ये जो तराना है, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तराना इतना ज़बान ज़दे आम हो जाएगा। और फिर भुट्टो साहब की जो तहरीक थी अयूब खान के ख़िलाफ़, और फिर इवन भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ ये तराना इस्तेमाल हुआ। जहाँ भी इस्तबदादियत होती है ना, तो वहाँ पर पॉपुलर मूवमेंट्स जो हैं वो तराना एक ही रखते हैं। तो आज भी ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में, जैसे वो जाग उठा है सारा वतन, वो भी एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है इस तरह का। तो बाकी ये कि बिज़नेस के हवाले से इट वाज अ बॉक्स ऑफिस हिट। मैं इसको हमेशा इसकी नफासत की वजह से नंबर्स दूंगा, एक्स्ट्रा मार्क्स, कि इसके अंदर वो चीज़ें जिनका ख्याल नहीं रखा जाता। ब्लैक एंड वाइट दौर था, लेकिन बहुत शानदार प्रोडक्शन थी। जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो ज़ाहिर है लिरिक्स हैं जोश मलियाबादी के, कंपोजिशन गुलाम नबी और अब्दुल लतीफ़ की, गाया मैडम नूरजहां ने, हमारे शो के लिए पेश किया था साइमा मुमताज़ ने। हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम सहरा, कली कली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। जहाँ की हर शाम एक देवी, जहाँ की हर सुबह हो एक रानी, जहाँ बरसता है रंग धानी, उधर मुड़ी है मेरी जवानी, हर एक सागर खनक रहा है, हर एक
जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। ब्रावा ब्रावा